हेलो एवरीवन, आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स देखेंगे. दिस इज रिलेटेड टू 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग टोटल 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस टॉपिक. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ tangents and normals are basically straight lines. So therefore let's revise some previous concepts of straight lines. Equation of a line. So we know standard equation of a line, y equal to mx plus c. So if y is written separately in the left side and rest are written in the right side, then coefficient of x is called slope of the line, correct? If it is written in this format, y equal to mx plus c, then the coefficient of x is called slope of the line. Now this is the general equation, ax plus by plus c equal to 0. Now, that means if x and y both are written on the same side, correct? They are on the same side, then slope of the line formula will be minus a by b. That means minus coefficient of x divided by coefficient of y. Now this is again another equation when point is available and slope is available. So point is x1 y1 and slope is m. Y minus y1 is equal to m x minus x1. Now this is the fourth equation which is also called two-point form. So two-point form, basically this is not that much required in this topic. One point is x1 y1 and another point is x2 y2. So first we have calculated the slope y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the slope of this line, and this side y minus y1 by x minus x1 was as it is. So this is also equation of the line. Slope of the line we have already discussed in different form how to write slope of the line. Now this we know m is equal to tan theta, where theta is the angle made with positive x axis. Parallel condition. So two lines are parallel if their slopes are equal, or if the slopes of the line are equal then they are parallel. Perpendicular condition. Product of the slope is minus 1, or if two lines are perpendicular then the second slope is reciprocal and negative of the first slope. So m2 is equal to minus 1 by m1. Tan theta formula, m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. Now what is theta here? So theta is the angle between two lines. This we have studied in class 11th. Like suppose this is the angle between the two lines L1 and L2. So M1 is the slope of line 1, M2 is the slope of line 2, and we want to find angle between two lines. Then this is the formula tan theta mod, it is inside mod M2 minus M1 by 1 plus M1 M2. So these are some concepts of straight lines which will be useful for our present topic. Now let us see theory related to tangents and then normals. Now let us see tangent on a curve. So this is the curve y equal to f of x, and this is the tangent. Okay, this t is the tangent. P is the point where the tangent touches the curve. P point is x1 y1. M is any general point on the tangent, m is any general point, xy is any general point on the tangent, and p is a very specific point. P is a very particular point because that is the point where tangent is drawn, tangent is touching to the curve. That means this point is common to both the curve and the tangent. So that is a very important point here. x1 y1 will satisfy the equation of the curve
as well as equation of the tangent. So this is common point to the curve and tangent. Now this is the slope of the tangent. We know slope of the tangent is the derivative of the curve dy by dx. So first find dy by dx, then put x1 in the place of x and y1 in the place of y, मतलब रिप्लेस कर देना है. इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 वो हमें dy by dx के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देना है. x1 रिप्लेस कर देगा x को और y1 हमें y के जगह पर पुट कर देना है. जब ये दोनों हम लोग पुट कर देंगे इन dy by dx, then that expression or that value will be called slope of the tangent. So m is dy by dx and replace x by x1, y by y1 in the expression of dy by dx. इस तरह से हमें slope of the tangent मिल गया. Now equation of the tangent हमने पढ़ा था y minus y1 is equal to m x minus x1. तो सिंपल यही है इक्वेशन ऑफ द लाइन. और जैसा मैंने बोला था टेंजेंट इज सिंपली अ लाइन. ओके, टेंजेंट इज अ लाइन. तो करना क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ m की वैल्यू पुट करनी है. सो m की वैल्यू है dy बाई डी एक्स एट x1 y1, बस आप उसको पुट कर दीजिए. सो देखिए ये हमारा इक्वेशन होता है ऑफ ए लाइन और सिंपली हमने m की वैल्यू पुट कर दी है. So that is finally okay equation of the tangent. ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप याद रखिएगा. अब ये दो पॉइंट इस तरफ हैं, तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होता है not defined, that is infinity. If the tangent is parallel to x axis, ठीक है, parallel to x axis और perpendicular to y axis, कभी भी लिखा रहा है perpendicular to y axis, उसको आप parallel में convert कर दीजिए. parallel में easy रहता है. यदि कोई y axis पे perpendicular है that means x axis के parallel है, और कोई यदि x axis पे perpendicular है तो y axis पे parallel होगा. तो पैरेलल जब आ जाता है तो हम डायरेक्टली स्लोप को इक्वेट कर सकते हैं. सो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, वाई एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी है. मान लेते हैं एनी लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दैट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और स्लोप ऑफ द लाइन डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा इट इज 0. सो दैट्स व्हाई पैरेलल में हम लोग जाएंगे, तुरंत हम लोग उसको स्लोप्स को इक्वेट कर देंगे. So tangent is parallel to x axis और perpendicular to y axis. Simply आपको क्या करना है, ये जो slope of the tangent है इक्वेट कर दीजिए 0 के साथ, क्योंकि x axis का slope 0 होता है. कंडीशन अप्लाई करेंगे m1 is equal to m2, parallel condition. Now tangent is parallel to y axis और perpendicular to x axis. So in this case जो हमारा slope of the tangent था इक्वेट कर देंगे विथ स्लोप ऑफ द y एक्सिस विच इज इंफिनिटी. सो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू इंफिनिटी. लेकिन याद रहे इंफिनिटी से हम किसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड. सो हम क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड देयरफॉर हम डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे. dy बाई डी एक्स का जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर को हम 0 से इक्वेट कर देंगे. So denominator of dy by dx at x1 y1 is equal to 0. इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेंगे. देखिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है बट आपको कंसेप्चुअली यहाँ स्टैंड करना पड़ेगा. यदि हमने यही सीखा है तो हम यही अप्लाई करेंगे. थोड़ा उसमें हमें डिसिप्लिन यदि रहेंगे तो हमें बहुत यूजफुल रहेगा. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा. प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, प्रॉब्लम्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. नाउ लेट अस सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू नॉर्मल्स.
Let us see normal on a curve. तो this was the given curve, same diagram है, this was the tangent and normal is a line perpendicular to the tangent and passing through the same point P, x1, y1. P के बारे में already हमने बात कर ली थी. This is the point common to both curve and tangent. इसमें आप modify कर देते हैं curve, tangent and normal. So this is a point common to all the three, to curve, tangent and normal. It is common point to all of the three. So this point will satisfy equation of the curve, equation of the tangent as well as equation of the normal. So normal is simply a line perpendicular to the tangent passing through the point where tangent is touching the curve. Slope of the normal same process है जो हमने टेंजेंट में फॉलो किया था, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, सो m2 इज इक्वल टू -1/m1. दैट मीन्स टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल लेना है एंड नेगेटिव लेना है, सो दैट विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. इसको हमें याद रखना है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन यही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. सेम इसमें m की वैल्यू बस हमें इधर से रिप्लेस कर देनी है. m की वैल्यू रिप्लेस कर दिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन. अब आ जाते हैं कुछ इन पॉइंट्स पे. नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा, इक्वल होगा. तो नॉर्मल का स्लोप है -1/dy/dx एंड x एक्सिस स्लोप इज 0. इक्वेट कर देंगे. बट यू हैव टू सॉल्व दिस. टू सॉल्व क्या मिलेगा आपको? मिल जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 0. सिंपली आपको सॉल्व कर देना इस इक्वेशन को. ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो जैसा मैंने बोला था आप इसको पैरेलल कांसेप्ट में ले आइए एंड देन सॉल्व. नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. सो नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो y एक्सिस का स्लोप इंफिनिटी है. सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो क्या मिलेगा? दोनों तरफ रेसिप्रोकल लीजिए, इंफिनिटी 0 हो जाएगा और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. हमें इक्वेशन मिलेगा dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 0. ये आपको सॉल्व करना होगा एंड यू कैन गेट फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर. एक बात याद रखेंगे, यदि गिवन है सपोज tangent is parallel to x axis. यदि गिवन है tangent is parallel to x axis, that means normal will be perpendicular to x axis. नॉर्मल का रिलेशन उस लाइन के साथ एकदम अपोजिट हो जाएगा. तो tangent is parallel to x axis, normal is perpendicular to x axis, या normal is parallel to y axis, ये भी बोल सकते हैं. अब यदि दिया है tangent is parallel to y axis, that means normal is perpendicular to y axis और normal is parallel to x axis. इस तरह से हम रिलेशन फाइंड करेंगे. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. tangent is parallel to x axis, normal is parallel to y axis. Tangent is parallel to y axis, normal is parallel to x axis. इस तरह से आप एक्सिस को या तो चेंज कर दो या फिर कंडीशन को चेंज कर दो. फाइन. सो इसको देखते हुए आप इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिख सकते हैं. सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए. थ्योरी आपका क्लियर रहेगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, प्रॉब्लम बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी. सो नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वर्कशीट ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्कशीट ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. क्वेश्चन नंबर 1. सो इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x. सो वी गॉट 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 इक्वल टू 0. सिंपल डिफरेंशिएशन है. So from here we got dy/dx value, थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, we got 1 minus x by y.
जैसा हम लोग जानते हैं दिस इज नॉट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्चुअली इट इज dy बाई डी एक्स एंड पुटिंग द पॉइंट जो हमें फाइंड करना है, जो पॉइंट हमें फाइंड करना है दैट पॉइंट इज वी आर एज्यूमिंग दैट पॉइंट इज x1 by 1. सो इट वॉज 1 माइनस एक्स बाई वाई, ये हो गया 1 माइनस x1 by y1. Slope of the tangent we got. Now first condition, if the tangent is parallel to x-axis, if the tangent is parallel to x-axis, हमने ये condition लिखा था, in this case the slope of the tangent will be equal to 0, so dy by dx at x1 y1 will be 0. इस expression को हम लोग 0 से equate कर देंगे, 0 से equate कर देंगे, x1 की value 1 मिल गई, suppose ये हमारा equation 1 है. Now this point x1 y1 will satisfy the equation of the given curve, ये हमने थ्योरी में लिखा था, और यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग इस कर्व के इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस पॉइंट को. सो वी गॉट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0. लेकिन हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है 1, सो लेट्स पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, और सॉल्व करेंगे तो हमें y1 की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2. सो देर आर 2 पॉइंट्स 1,2 एंड 1,-2. सो दिस इज द आंसर इफ tangent is parallel to x-axis. But if the tangent is parallel to y-axis, क्या करना है? So y-axis का स्लोप हम लोग जानते हैं, y-axis का स्लोप होता है इन्फिनिटी, और tangent का स्लोप हमने लिख लिया है, ये है tangent का स्लोप. तो हम क्या करेंगे, इस tangent के स्लोप को हम लोग इक्वेट करना है इन्फिनिटी के साथ. देखा जाए तो हमें लिखना चाहिए dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. लेकिन इन्फिनिटी में हम सॉल्व नहीं करते हैं, तो हम इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे और इन्फिनिटी का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे. सो 1 बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा. दैट्स इट, एक्सप्रेशन हमारे पास है, पुट कीजिए, y1 की वैल्यू 0 आ गई. नाउ y1 की वैल्यू 0 फिर से हम लोग अपने कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे, वी विल गेट दिस इक्वेशन. सॉल्व करेंगे, x1 की 2 वैल्यू आ गई, -1, -3. Again there are 2 points in this condition and these are -1,0 and 3,0. So these are the points for the second condition. Let us see problem number 2. Curve की equation given है, y equal to x1 cube minus 11x plus 5. Equation of the tangent given है, y equal to x minus 11. हमें points find करने हैं, points मतलब x1 y1. The point which is common to both curve and the tangent. So हमने y लिख लिया, equation of the curve, then differentiate किया, dy by dx आ गया, slope of the tangent find कर लिया. x1 y1 के बारे में always लिख देंगे, आगे से अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इसको थोड़ा लिख देंगे x1 y1 है क्या. नहीं, then अब ये dy by dx आ गया है, लेकिन equation of the tangent is also given, y equal to x minus 11. We know that y equal to mx plus c. This is the general equation. So this is the standard equation. So m की वैल्यू मिल जा रही है 1. Slope of the tangent is 1. और ये भी है slope of the tangent जो हमने इस प्रोसेस से, डेरिवेटिव प्रोसेस से फाइंड किया है. So दोनों ही सेम tangent के स्लोप हैं, इक्वेट कर देंगे. इक्वेट कर दिया हमने, देन सॉल्व किया, x1 की वैल्यू आ गई +2 और -2. अब x1 की वैल्यू 2 हम लोग कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे, कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें y1 मिल जाएगा -9. दैट मीन्स 1 पॉइंट इज 2 -9. सिमिलरली -2 पुट कर देंगे इन द सेम कर्व, y1 की वैल्यू मिल जाएगी 19. सो द पॉइंट इज -2, 19. 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, -2, 19 एंड 2, -9 दोनों हमें पुट करना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से इसको याद रखिएगा. कभी भी कर्व एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट दोनों गिवन है तो आप इस चेक को जरूर अप्लाई कीजिएगा. नाउ यदि आपको x1 की वैल्यू मिली है तो एक हैबिट डेवलप कीजिए कि हम x1 की वैल्यू कर्व में ही पुट करेंगे, एक ही प्रोसेस से हम जाएंगे. सो x1 की वैल्यू कर्व में पुट करेंगे, y1 मिल जाएगा. नाउ ये x1 y1 क्या हमारा फाइनल आंसर होगा या नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा.
यदि टेंजेंट का इक्वेशन नहीं गिवन है, टेंजेंट का इक्वेशन नहीं गिवन है, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो आपको x1 y1 आया है वो आप आंसर लिख देंगे। लेकिन यदि आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट गिवन है तो आपका जो भी वैल्यूज आपको मिले हैं, द पॉइंट्स यू हैव गॉट, यू शुड पुट इट इनटू द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सो हमने -2,19 यदि इसमें पुट करेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। -2,19 सपोज आप इसमें पुट कीजिएगा, क्या मिलेगा? 19 इज इक्वल टू -2 -11, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और यदि आप 2, -9 पुट कीजिएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा। 2, -9, सो -9 इज इक्वल टू 2 -11, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई दिस पॉइंट इज रिजेक्टेड। Fine, this is rejected and 2, -9 is the final required point. Next problem number 3. ऐसे तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब 4 मार्क का अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम होता है, बट बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशन ये एक छोटा प्रॉब्लम बन जाता है। सो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3। कर्व की इक्वेशन गिवन है एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है। इस कर्व की इक्वेशन से हमने डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx मिल गया। dy बाई dx में ये x1 y1 हम लोग पुट करते हैं, तो हमने पुट कर दिया, हमें मिला -1 बाई x1 -3 का स्क्वायर। क्या है ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन क्वेश्चन में भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट डेरिवेटिव मेथड से जो हमें मिला था एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्वेश्चन में जो गिवन था, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब इस इक्वेट करने से हमें क्या मिला? हमें मिला x1 -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। देखिए ये स्क्वायर है और ये नेगेटिव है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है फॉर रियल नंबर। आप किसी का स्क्वायर कर रहे हैं और नेगेटिव मिल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो आप इसमें लिख देंगे दिस इज नॉट ए पॉसिबल कंडीशन एंड देयरफॉर नो टेंजेंट्स आर पॉसिबल इन दीज कंडीशंस। इसमें आपका नो सॉल्यूशन होगा, नो टेंजेंट इज पॉसिबल। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 4। सो दिस इज द गिवन कर्व y इक्वल टू x² - 2x + 7। हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है अंडर 2 कंडीशंस। A, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, B, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सो सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर लिया, डिफरेंशिएशन किया, dy बाई dx आ गया, देन दैट dy बाई dx वी हैव पुट x1 y1। तो इसमें तो y1 है नहीं, ओनली x इज देयर, सो ये हो गया 2x1 - 2 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ध्यान देंगे पैरेलल कंडीशन, तो इस गिवन लाइन का स्लोप हमने फाइंड कर लिया और अपने टेंजेंट के स्लोप से इक्वेट कर दिया। सो 2x1 - 2 इज इक्वल टू 2x1 - 2 इज इक्वल टू 2। सो x1 की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x1 की वैल्यू हम अपने कर्व में पुट कर देंगे, हमें y1 मिल जाएगा। सो y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 2 हमने पुट कर दिया, y1 की वैल्यू हमें 7 मिल गई। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जैसे हम लोग लिखते हैं, सेम थ्योरी में हमने जैसा डिस्कस किया था। सो y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। पॉइंट इज 2, 7 एंड स्लोप इज 2। पुट कर देंगे, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट बिट। नाउ सेकेंड बिट। सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका भी स्लोप हमने फाइंड कर लिया, जो हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में। Now this value is 3 and this is the slope of the tangent, but the condition is perpendicular. So दोनों का प्रोडक्ट m1 into m2 हो जाएगा -1, m1 m2 equals to -1। सॉल्व करेंगे, x1 की वैल्यू मिल गई 5/6। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना इधर, x1 की वैल्यू 5/6। अब इस x1 को हम लोग अगेन कर्व में पुट कर देंगे, कर्व में पुट करेंगे, y1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। This will be 217/36। Now point हमें मिल गया है, this is the point, ठीक है, x1 5/6 and y1 this much। point मिल गया है। स्लोप क्या होगा? देखो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 3,
लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंडीशन है, मतलब इसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, दैट्स व्हाई स्लोप विल बी -1/3 फॉर टेंजेंट, reciprocal of this and negative because of perpendicular condition. And the point 5/6 217/36 पुट कर दिया हमने, यही हमारा इक्वेशन था, स्टैंडर्ड इक्वेशन वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x1 y1 फाइंड कीजिए, m फाइंड करके और इसी इक्वेशन में पुट करना है. सो वी हैव डन दिस, सॉल्व करेंगे, 36y प्लस 12x माइनस 227 इक्वल्स टू 0 is the answer for the second bit. अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, लिखने के स्टाइल पे भी ध्यान देंगे. Let us see problem number 5. क्या क्या गिवन है? So कर्व की इक्वेशन गिवन है 9y square equal to x cube and one information is given, normal makes equal intercepts with the axis. Find the points. Points का मतलब हम लोग जानते हैं x1 y1, that common point. Now normal is a line, fine, with some special condition. Normal makes equal intercepts with the axis. That means diagram दो तरह का possible है. First, normal is making intercepts in this way, so they are equal, fine, on the x-axis and y-axis. यदि ये situation है, तो slope of the normal will be -1 because this angle will be 135 degree. Slope will be -1. And this is also possibility that so this intercept on the y-axis and this intercept on the x-axis, they are equal, and in this case the slope will be 45 degree, that means slope will be tan 45 degree, that means slope will be 1. So there will be two possibilities, slope of the normal will be 1 or slope of the normal will be -1. तो सिंपली आपको वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है. दिस इज द गिवन कर्व, डिफरेंशिएशन किया गया, dy बाई dx आ गया. स्लोप ऑफ द नॉर्मल का हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल 6y1 बाई x1 स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन. अब इस स्लोप को एक बार हमने 1 से इक्वेट कर दिया, एक बार -1 से इक्वेट कर दिया, दैट्स इट. सो जब हमने 1 से इक्वेट किया, y1 आ गई -x1 स्क्वायर बाई 6. अब इस वैल्यू को y1 की इस वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4. ये कैलकुलेशन है, y1 की वैल्यू है -x1 स्क्वायर बाई 6, पुट कर देंगे y के जगह पे, तो x क्यूब तो कैंसिल हो गए, सिंपली x1 की वैल्यू आ जाएगी 4. और यदि x1 4 है, फिर वापस y1 में पुट करेंगे, सो y1 आ गई -8/3. सेम यही कैलकुलेशन करना है बाय टेकिंग -1, जैसा हमने बोला था 135 डिग्री, सो हियर स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी -1. सेम वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना है, y1 की वैल्यू आ गई 8/3, x1 की वैल्यू 4. सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4, ±8/3. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ प्रॉब्लम नंबर 6 एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर देने हैं बस. कर्व गिवन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन. सेकंड इंफॉर्मेशन, इसमें एक्चुअली दो इंफॉर्मेशन है. टेंजेंट एट 1, -6 इज पैरेलल टू दिस. ये जो टेंजेंट एट 1, -6 है ना, तो ये 1, -6 इज द x1 y1, क्योंकि इस पे टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है. तो इस पॉइंट का दो जगह यूज होगी, two places. One, it will satisfy the equation of the curve. तो हमने इक्वेशन ऑफ द कर्व में पुट कर दिया किसको, 1, -6 को. y की वैल्यू -6 पुट कर दिया और x की वैल्यू 1 पुट कर दिया. वी गॉट फर्स्ट इक्वेशन a + b इज इक्वल टू -7. सेकेंड यूज ऑफ 1, -6, टेंजेंट एट दिस इज पैरेलल टू दिस. हम लोग क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन थी, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, वी गॉट dy बाई dx. अब इस dy बाई dx में हम इस पॉइंट को पुट कर देंगे, जैसे हम लोग x1 y1 पुट करते हैं, 3x1 स्क्वायर प्लस a, और x1 y1 की वैल्यू है हमारे पास, x1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, वी विल गेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट 3 + a. स्लोप ऑफ द गिवन लाइन फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 1. सिंस पैरेलल है,
tangent and the given line they are parallel, equate कर देंगे 3 plus a is equal to 1, a value we are getting -2 और इस -2 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, b will be -5। यही हमें a और b फाइंड करना था। तो जो आपने सीखा है बस वो थ्योरी को अप्लाई किया गया है। प्रॉब्लम नंबर 7, क्या क्या गिवन है? फर्स्ट, कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू √5x - 3 - 2 एंड अनदर इंफॉर्मेशन इज tangent is parallel to the line 4x - 2y + 3 = 0, find equation of the tangent। तो इक्वेशन ऑफ द tangent के लिए हमें चाहिए पॉइंट्स एंड स्लोप ऑफ द tangent। देखो स्लोप ऑफ द tangent तो यहीं से मिल जाएगा बिकॉज tangent इज पैरेलल टू दिस, तो स्लोप मिल गया। मतलब अब हमें सिर्फ पॉइंट्स फाइंड करने हैं, मतलब x1 y1 फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं कर्व के इक्वेशन से। सो y इक्वल टू √5x - 3 - 2, -2 सेपरेट है, dy/dx डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। सो ये -2 तो 0 हो जाएगा, पहले रूट का डेरिवेटिव, सो 1/2√5x - 3 इनटू, अब फिर अंदर का डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी 5। सो दिस इज dy/dx। हम जानते हैं इसमें हम x1 y1 पुट कर देंगे, तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ द tangent एंड एज इट इज गिवन, दिस इज द गिवन लाइन, तो हमने इसका भी स्लोप फाइंड कर लिया। जो हमारा फॉर्मूला था -a/b, इस फॉर्मूले से हमने गिवन लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया। tangent एंड द गिवन लाइन दे आर पैरेलल, पैरेलल मींस m1 = m2, दोनों का स्लोप सेम होगा। सो दिस वाज द स्लोप ऑफ द tangent, दिस वाज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, दोनों को इक्वेट कर दिया, अच्छे से सॉल्व कर देंगे, x आ जाएगा 73/80। पुटिंग x1 y1 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x1 y1, तो इक्वेशन बन जाएगा y1 इज इक्वल टू √5x1 - 3 - 2 विच इज रिटन हियर। अब देखो x1 की वैल्यू मिल गई है, पुट कर देंगे, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए ध्यान देना, √5x1 - 3 ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, तो मैंने पुट तो कर दिया है, लेकिन मैंने एक्चुअली वैल्यू, इसकी वैल्यू 5/4 यहां डायरेक्ट पुट कर दिया। 5/4 - 2 = -3/4, आराम से मुझे y1 की वैल्यू मिल गई। तो देखो हमें चाहिए था पॉइंट्स ना, क्योंकि स्लोप तो इससे मिल ही रहा है, तो पॉइंट्स हो गए, दिस इज y, सो पॉइंट्स हो गए 73/80, -3/4। सो इधर हमने पुट कर दिया y - y1 और इधर हमने पुट कर दिया x - x1। जहां तक स्लोप की बात है, तो स्लोप हमें इस लाइन से मिल ही जाएगा, क्योंकि पैरेलल है ना, जो इस लाइन की स्लोप है वही टेंजेंट की स्लोप है। तो इस लाइन की स्लोप हमें 2 मिल गई थी, इस 2 को हमने इस जगह पर पुट कर दिया। अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8। सो बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, बस आपको ध्यान देना है कंडीशन क्या दी हुई है, कौन सी कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन पे ध्यान रखना है। सो कंडीशन क्या है? सो कर्व गिवन है y = x3, कंडीशन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट कौन है, समझ रहे हो ना, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट मतलब x1 y1 के बारे में बात हो रही है। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू x1 बोला जाए तो। फाइंड पॉइंट्स, बस हमें पॉइंट्स फाइंड करना है, तो क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, आपको पॉइंट्स फाइंड करना है या इक्वेशन फाइंड करना है। सो राइट नाउ हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सो हमने कर्व का इक्वेशन लिया y = x3, डिफरेंशिएशन कर दिया, सो dy/dx इज इक्वल टू 3x²। ऑब्वियसली हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा, सो दैट इज 3x1², करेक्ट, दैट इज 3x1², और इसको हम इक्वेट कर देंगे इसके x कोऑर्डिनेट से। सो लिख देंगे दैट इज द गिवन इंफॉर्मेशन, और ये हो गया इक्वेट हो गया, x1 की वैल्यू मिल जाएगी, 2x1 की वैल्यू मिलेगी। प्लीज इसको कट मत कीजिएगा, कट कीजिएगा तो x1 की वैल्यू 0 खत्म हो जाएगी। सो x1 की एक वैल्यू आ गई 0, इफ वी पुट x1 = 0 इन द गिवन इक्वेशन, y1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। दूसरी वैल्यू आई इस फैक्टर से, x1 = 1/3 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू 1/27 आ जाएगी।
So required points are 0, 0 and 1/3, 1/27. अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में आपको थिंकिंग टाइम बहुत कम लगेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा इस स्टेप के बाद क्या करना है, किसको सॉल्व करना है, किसको फाइंड करना है, ये पूरा एकदम क्लियर रहेगा। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9। सो कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है एंड थीटा इज गिवन π/4। हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है। तो यदि देखा जाए क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, वी वांट पॉइंट एंड वी वांट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट है। पॉइंट तो हमें डायरेक्ट मिल जा रहा है, थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे, हमें पॉइंट मिल जाएगा विच वी हैव कैलकुलेटेड हियर। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द पॉइंट। सो पॉइंट डन। नाउ वी वांट स्लोप। सो स्लोप के लिए हमने x को डिफरेंशिएट कर दिया, देन y को डिफरेंशिएट कर दिया, पहले भी हमने ये बनाया है। नाउ dy/dx पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, दोनों का डिवीजन होता है। वी गॉट दिस मच, बट किस पॉइंट पे चाहिए वो भी लिखा हुआ है। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/4। थीटा की वैल्यू π/4 हमें dy/dx के एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। सो ये था 1 माइनस कॉस थीटा, सो ये बन गया 1 माइनस कॉस π/4 दैट इज 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन π/4 दैट इज 1/√2। और इसको यदि एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर देंगे तो √2 - 1 ये आ जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज यू कैन सी हियर। सो डन, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, एंड नाउ you can complete by this formula y minus y1 is equal to m x minus x1। point मिल गया है, slope मिल गया है। so we have written here y minus ये जो y1 आया था is equal to m, इसको यदि कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली √2 - 1 आ जाएगा, x माइनस और ये रहा x1, कैलकुलेशन कर लेंगे। फाइनली दिस इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 9। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 भी इंपॉर्टेंट है बट 10 हमारा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, इसके लैंग्वेज को पहले हमें समझना पड़ेगा। सो गिवन है एक लाइन हमें गिवन है और एक कर्व हमें गिवन है। क्या करना है, हमें प्रूव करना है दैट दिस लाइन इज एक्चुअली टेंजेंट टू द कर्व। ये जो लाइन है ये एक्चुअली इस कर्व का टेंजेंट है। टेंजेंट कोई पॉइंट पे होगा, वो पॉइंट कौन है, वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कर्व जो है वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एट दैट पॉइंट दिस इज द टेंजेंट ऑन दिस कर्व। दैट मीन्स सिंपली हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। सो इसको आप भूल जाइए, आप बस इसको देखिए, कर्व गिवन है और यहां से पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो कर्व मिल जाएगा एंड पॉइंट मिल जाएगा, दैट्स इट। इन दोनों से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर लीजिए। सो कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस, सो यू नो एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो x1 हो गया 0, यदि x1 की वैल्यू 0 कर्व में पुट कर देंगे तो y1 विल बिकम b, y1 की वैल्यू b आ जाएगी क्योंकि e⁻0 विल बी 1। सो y1 आ गई b, दैट मीन्स पॉइंट हो गई 0, b। x1 y1 हमें मिल गया, हमारा पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। नाउ y इक्वल टू दिस मच, डिफरेंशिएट कर देंगे, b इज ए कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होगा और फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/a। सो दिस इज आवर dy/dx। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट हमें मिल गया है 0, b। सो dy/dx एट 0, b। सो ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी dy/dx, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू b पुट करेंगे।
y तो है नहीं, ओनली x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सो स्लोप ऑफ द टैंजेंट मिल गया -b/a। नाउ इट्स ओवर, स्लोप मिल गया है, पॉइंट b मिल गया है। नाउ अगेन y minus y1 is equal to mx minus x1। so equation of the tangent y minus b, क्योंकि पॉइंट है 0, b, so y minus b is equal to, this is the slope, into x minus 0। करेक्ट, स्लोप मिल गया था -b/a। सिंप्लीफाई कर दीजिए, यस वी आर गेटिंग सेम लाइन एज द tangent to the curve। so this was our फर्स्ट वर्कशीट ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सो आप देख रहे हैं बहुत तरह के वेरिएशंस आ सकते हैं, सेम गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। सो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी थॉट की क्लैरिटी हो जाएगी। वी विल सॉल्व 2 more वर्कशीट्स इन नेक्स्ट 2 videos।